keep it simple. मेरा नाम है हर्षिता and welcome to day 2 of your English learning course and second part of our article series. So today we are going to discuss the usage of indefinite articles in daily conversations. Before that, if you haven't watched our first video where I discussed the difference between and what are definitely these articles and specifically about indefinite articles, तो link description में है, अभी जाके देख लीजिए. Otherwise, let's get started. So the first category is that I have divided it into several categories for your better comprehension, but you have to remember that this one is the base of this entire division, and these are not just useful in your daily speaking, for your daily speaking, but for your competitive exams also. I don't know why am I saying in your, but it is going to be really helpful if you're preparing for any competitive exam or you want to improve your English without those minute grammatical errors. Okay, so चलो जल्दी शुरू करते हैं फिर. First one is singular countable noun. So what do you understand by singular countable noun? Noun, I have already told you, it is what is referred to a thing or a place or a person is referred to as a noun. In general, we call it a noun. It has to be singular and countable. Now, what does this singular and countable means? It means whatever noun you're taking is to be one in number, only one. And it has to be countable. इन दोनों का मतलब क्या है? इसको एक वचन में होना चाहिए. Singular means एक वचन, and it has to be countable, which means that it should be into numbers like 1, 2, 3, 4, 5. उसको आप 1, 2, 3 इस तरीके से गिन सके, तो वो इस कैटेगरी में आता है. Let me give you an example for that. Like I write here, I saw what? I saw cat. Okay. I write here a. Now why have I written here an indefinite article? Question ये यहाँ ये क्यों लिखा? This cat is a noun. It is singular, यानी कि एक बिल्ली की बात हो रही है, and it is countable. You can say ना एक बिल्ली है, दो बिल्ली, छत पे दो बिल्लियाँ बैठी हैं. This is how you can count cats. Objects which are countable, उन्हें हम कहते हैं. अब इसके अलावा it is not in general. You have to remember one thing. Everything depends on context. तो किस context में बात हो रही है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. कैसे, ये मैं बताती हूँ. Singular countable noun का मतलब तो आपको पता चल गया. Let me give you an example and then we'll be discussing in sentences. Till now हमने sentences में बात नहीं की है, but सिर्फ वर्ड्स में बात करने से आपको सिर्फ डिफरेंस समझ में आएगा, प्रैक्टिकल यूजेज में मुश्किल आ सकती है. सो इन दिस वीडियो हम सेंटेंसेस में प्रॉपरली बात करेंगे सो दैट इट हेल्प्स यू इन कम्पिटिटिव एग्जाम मोर एक्चुअली. जैसे हियर आई राइट फ्यू थिंग्स. आई हैव रिटन हियर मिल्क, आई हैव रिटन हियर जूस, आई हैव रिटन हियर दिस एप्पल, एंड लेट मी से आई हैव रिटन मैंगो. ठीक है, इनमें से किसके आगे नाम लगेगा कि आर्टिकल लगेगा, किसके आगे नहीं लगेगा. तो ये मिल्क और जूस, इसके आगे आर्टिकल नहीं लगता क्योंकि आप मिल्क को काउंट नहीं कर सकते. एक मिल्क, दो मिल्क नहीं कह सकते हो. अगर कभी भी आपने खुद भी सुना होगा, वी डू नॉट से गिव मी अ मिल्क, वी से गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क. इट इज विद हियर नो आर्टिकल इज यूज्ड क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए. सिंगुलर तो है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म होता है क्या? दूध का दूध ही सुना है, जूस का जूसे सुना है? नहीं ना, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है. मिल्क इज मिल्क क्योंकि वो काउंटेबल ही नहीं है. याद रखना हमेशा, बहुवचन उसी का बन सकता है जो गिनतियों में आ सके. पुस्तक का पुस्तकें हो सकता है, लेकिन जूस का जूस, दूध का दूध है, पानी का पानिया नहीं हो सकता. ठीक है, सो दिस इज अ टिप. अगर आपको कंफ्यूजन, इफ यू आर अ बिगिनर डेफिनेटली कंफ्यूजन होंगे, तो उसके लिए मैंने टिप दी है. दूध को 1, 2, 3 नहीं गिन सकते हो. यू कैन ओनली से कब लगेगा आर्टिकल, अगर मैं कह दूं ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ मिल्क. अगर अ ग्लास ऑफ मिल्क आ गया तब ये आर्टिकल सही है. क्यों ये आर्टिकल सही है? क्यों? क्योंकि ग्लास तो गिन सकते हो ना, ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, घर में तो कितनी ग्लासेस रहती है. तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए. ये मतलब है यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से. ठीक है, अब चलो सेंटेंसेस में बात कर लेते हैं. इसमें तो एन एप्पल हो जाएगा, अ मैंगो हो जाएगा. जूस में भी आपको बोलना पड़ेगा अ कैन ऑफ जूस या अ ग्लास ऑफ जूस. ठीक है, ये डिफरेंस है. नाउ लेट अस मूव टू सम डेली लाइफ एग्जांपल्स.
ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब था। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या, सपोज मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, ठीक है, आई नो दिस इज सुपर सेंटेंस टू रीड। यहाँ पर I have written a cat is an animal. So here in this sentence you have to understand the context. What am I talking? What do I mean by context? आप आर्टिकल किसी के आगे लगा सकते हो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक्सेप्टेड, समझ गए। लेकिन इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि वो तभी लगेगा अगर आप जिस चीज की, जिस नाउन की बात कर रहे हैं, दैट नाउन ईदर इज नॉट डेफिनेट, क्योंकि देखो डेफिनेट होगा तो फिर इनडेफिनेट आर्टिकल कैसे लग जाएगा, खुद ही सोचो। इंडेफिनेट का मतलब ही वही है जो स्पेसिफिक ही नहीं है, वो डेफिनेट नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा, वो सेंटेंस, वो जो कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, वो अगर किसी क्लास ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हो, क्लास ऑफ थिंग्स से मेरा मतलब है अगेन वो डेफिनेट एक चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो इन जनरल उस पूरी कैटेगरी को रेफर कर रहा है। जैसे आई एम गोइंग टू मेक अ सेक्सिस्ट रिमार्क, ओके आई विल नॉट मेक इट बिकॉज आई गेट ऑफेंडेड पर्सनली, आई विल नॉट मेक अ सेक्सिस्ट रिमार्क। But if I have to say that, if I say women, no, I will not say that. ठीक है, I can't frame a sentence properly. I'm sorry. So let me take another one. Let me take another example. तो आपको दोनों context समझ में आ जाएंगे, ठीक है। पहला देखो, पहला है, अब मैं 3 लिखने वाली हूँ, ठीक है। I have to see here. An elephant never forgets, and मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। पहला है दिस इज माई कैट। क्या लगता है यहाँ पर आर्टिकल होगा? नहीं, यहाँ पर आर्टिकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कैट तो मैंने अभी बता दिया, चलो ये तो बनी रहना। और हमेशा याद रखना ये बेसिक है, ये एक फाउंडेशन की तरह है। लाइक हाउस फाउंडेशन हैज टू बी स्टडी, उसके ऊपर ही घर बना सकते हो, वैसे ही यहाँ पर भी दिस इज द फाउंडेशन। पूरा का पूरा जो लॉजिक, जो कॉन्सेप्ट, जो रूल्स लगते हैं ना आर्टिकल के, इंडेफिनेट के, वो इसी पर लगते हैं। अगर ये वैलिड नहीं है, सिंगुलर काउंटेबल, ये दोनों वर्ड्स वैलिड नहीं हो रहे हैं, तो तुम आगे सोचना भी नहीं, ठीक है। सो नाउ हियर लुक एट मी, सॉरी लुक एट द बोर्ड। दिस इज माई कैट। यहाँ पर कैट इज सिंगुलर एंड काउंटेबल, लेकिन इसमें तुम नहीं लगा सकते हो आर्टिकल। क्यों? उससे पहले माई आ गया है। अब अगर मैं कह रही हूँ ये मेरी बिल्ली है, इसका मतलब है कि मैं उस एक कैट की बात कर रही हूँ who belongs to me। तो जाहिर सी बात है ये डेफिनेट की कैटेगरी में तुरंत आ गया। सपोज यू हैव अ डॉग and you lose it somehow, unfortunately, and now you are going to for the lost and found section and then whatever. Now if you want your dog back, if you want him back, if you want it back, तो क्या करोगे? Definitely I cannot bring any dog for you, right? कि मुझे कोई भी रोड पे मिल गया, मैं ले आई, मैंने कहा लीजिए आपका डॉग। नहीं, आपका डॉग के कुछ स्पेसिफिकेशंस तो होंगे ना, लैब्राडोर होगा, जर्मन शेफर्ड होगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इफ यू टॉकिंग ऑफ अ डेफिनेट थिंग। ये एक डेफिनेट चीज हो गई है। अभी यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट अ कैट, इट्स अबाउट अ कैट हु बिलोंग्स टू समवन। तो वो सिर्फ एक ही बिल्ली, सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक, डेफिनेट हो गया, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ये याद रखना। नेक्स्ट में मैंने बोला है एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। यहाँ पर एलिफेंट इज सिंगुलर, एलिफेंट इज काउंटेबल, और यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर मैं एक जनरल टर्म में बात कर रही हूँ। जनरल टर्म में मैं किसी एक एलिफेंट या मैं किसी एक एनिमल को नहीं रेफर कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कह रही हूँ कि हाथी कभी कुछ भूलता नहीं है। सो इट मीन्स इट इज एप्लीकेबल, यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल द एलिफेंट्स। ओके, तो यहाँ पर an article can be used, an indefinite article particularly can be used, ठीक है। ये मैं कहना चाह रही हूँ। नाउ पहला होना चाहिए कि अब अगर मैं यहाँ पे चलो माय हटा दूं, लेट मी से, मैंने यहाँ से माय हटा दिया एंड इट इज दिस इज कैट, तो क्या यहाँ पर आर्टिकल लगेगा? बिल्कुल लग जाएगा, अ कैट हो जाएगा। क्यों? अब तो कैट
वो एक बिल्ली है, वो एक बिल्ली, आप एक कैट को रेफर कर रहे हो ना, वो कुछ जनरल नहीं है कि मेरी है, कि मेरे पड़ोसी की है, कि मेरे भाई की है, वो एक जनरल बात हो गई। अब ये तीसरा एग्जाम्पल देखो, ये तीसरा एग्जाम्पल इन दोनों कॉन्टेक्स्ट का एक तरीके से मिश्रण है। कैसे है? अ कैट कैन कैच अ माउस, हियर यू टॉकिंग ऑफ अ कैट, जनरल बात कर रहे हो कि एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ सकती है। हम लोग कभी भी देखा है क्या कि चूहा बिल्ली को पकड़ लाया है? नहीं, उस सेंस में कह रही हूं मैं, ठीक है? तो ये समझना है इस बात को। अ कैट कैन कैच अ माउस, हियर इट मीन्स इट इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली। कैन कैच अ माउस, एक बिल्ली चूहे को पकड़ सकती है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है जी। टॉम एंड जेरी में भी तो टॉम ही बेचारा, टॉम ही जेरी के पीछे पड़ा हुआ था ना बेचारा, तो इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो ये बात है, ये मैं कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही हूँ। डेफिनेट नहीं होना चाहिए, पहली बात, किसी एक चीज को रेफर नहीं करना चाहिए वो, अगर कहीं स्पेसिफिकेशंस आ गए तो नहीं। और दूसरा, अगर लगा रहे हो तो वो किसी अगर क्लास को कोई एक चीज कह रहा है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तब वो लगेगा, तब वो गलत नहीं होगा, ठीक है? ये याद रखना। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है? एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द नाउन्स, ओके? मैं पहले बता चुकी हूँ कौन से नहीं गिने जाएंगे, कौन से गिने जाएंगे, ओके? नेक्स्ट, अब आ जाते हैं वन पे। नाउ इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड वन कैन बी, इंडेफिनिट आर्टिकल कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन, यानी एक, ठीक है? किसी एक, क्योंकि इतनी देर से हम लोग यही तो कर रहे हैं, मैंने सिंगुलर बोला तो एक ही वचन होगा वो, फिर तो मैं एक के बारे, एक ही का तो मैं कह रही हूँ। भी मैंने लिखा था दिस इज अ कैट, इसको एक बिल्ली। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो वन की जगह पर सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पर 100 रुपीज, ठीक है? अ बुक, एन एप्पल, ठीक है? देखो ये सारे के, अब यहाँ पर तुम इसको, अब तुम यहाँ पर अ लिखो या वन लिखो, बात तो वही है, कुछ गलत नहीं है। लिखो 100 रुपीज या 100 रुपीज, वही बात है। अ बुक या वन बुक, वही बात है, कोई फर्क नहीं है इस बात में। अ मिलियन, 1 मिलियन, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। वन की जगह पर इस्तेमाल हो सकता है, आप आर्टिकल को वन की जगह लिख सकते हो, लेकिन गलती ये मत करना कि ये सोच लेना कि इंटरचेंजेबल है, कि चलो अगर हम वन की जगह अ लिख सकते हैं, आर्टिकल लगा सकते हैं, तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल की जगह वन लगा देंगे। ये कभी मत करना, मैंने इंटरचेंजेबल नहीं बोला है। एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान से देखना। 2 एग्जाम्पल है, सुनना, देखना मतलब। नाउ सी हियर, 2 सेंटेंसेस है, पहला ये है और दूसरा ये है। ही गेव मी डैश हियर। अब इन दोनों में क्या कर सकते हो? एजुकेटेड मैन कैन चेंज द सोसाइटी। अब क्या है, अब यहाँ पर तुम चाहे अ लिखो या वन लिखो, कोई बात नहीं है, वहां पे सेंस ये आ रहा है कि उसने आपको 100 रुपए दिए, बात खत्म हो गई। इस दूसरे में क्या है, यहाँ पर अ लिखो या वन लिखो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एंड सॉरी, अ नहीं एंड, एजुकेटेड है ना, ई लगा है तो एंड या वन दोनों नहीं लग सकते। अब यहाँ पे फर्क समझना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल लग सकता है, और कौन सा लग सकता है? एंड लगेगा, क्योंकि ई है, वाउल है, मैंने पहले बताया था, आवाज भी वाउल की पड़ रही है, तो एंड एजुकेटेड मैन कैन चेंज द सोसाइटी। अरे पर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे मतलब समझना, यहाँ पर ये कहना ये चाह रहा है कि एक पढ़ा लिखा इंसान एक सोसाइटी में, यानी कि समाज में बदलाव ला सकता है। ये बात एक इंसान के लिए नहीं हो रही है, ये बात एक पूरी, एक ऐसी बात हो रही है, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बात है, ये पूरी कैटेगरी के लिए हो रही है। ये बात सिर्फ एक इंसान की नहीं है। यहाँ पर अगर लिख दोगे वन मैन, चलो मैं वन लिख देती हूँ, वन एजुकेटेड मैन कैन चेंज द सोसाइटी, तो यहाँ पे ये अब मतलब क्या देगा कि एक पढ़ा लिखा इंसान सोसाइटी बदल सकता है।
दो होंगे तो सोसाइटी नहीं बदलेगी। ये मतलब है यहाँ पर कि सिर्फ एक ही पढ़ा लिखा इंसान सोसाइटी को बदल सकता है। जबकि अगर मैं यहाँ पर एन लगा रही हूँ तो इसका मतलब साफ साफ निकल के आ रहा है आप एक नया मूवमेंट को इनिशिएट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज समझना है, ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बात है। ये पूरी पढ़ी लिखी कौम को रेफर कर रही है, सिर्फ एक इंसान को नहीं। तो यहाँ पर वन नहीं लग सकता। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, आर्टिकल वन की जगह लग जाएगा, वन आर्टिकल की जगह नहीं लगेगा, ये याद रखना। और कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस हैं, यानी कहीं कहीं पर वन की जगह आर्टिकल भी नहीं लग सकता। जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, वो फिलहाल यहाँ पे यूज करने के लिए नहीं है, लेकिन उसको ध्यान रखना ताकि कंफ्यूज ना हो। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल होता है, डू यू हैव अ पेन, लाइक आई से दिस इज अ क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन है इस तरीके से, डू यू हैव अ पेन, ये क्वेश्चन है। अब इसके लिए तुम कह सकते हो यस आई हैव वन। यहां पर ये जो वन लिखा है ना, ये जब ऐसे सवाल हो और उसके जवाब में कुछ कह रहे हो, तब यहाँ पर यस आई हैव वन, हाँ मेरे पास है, यहाँ पर इसकी जगह एन या अ नहीं लगा सकते हो। क्यों? इनकम्प्लीट सेंटेंस यस आई हैव एन, यस आई हैव अ, कोई सेंस बना रहा है, तो यहाँ नहीं लग सकता है। ये केसेस को ध्यान में रखना। यस आई हैव वन अगर जवाब दे रहे हो, अगर इट इज नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स और द नंबर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये एक्सेप्शंस होते हैं, ये जनरल बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, कुड यू गिव, डू यू हैव अ पेन, कुड यू स्पेयर वन, कुड यू स्पेयर वन, कुड यू स्पेयर एन, नहीं, ये चीज है। डोंट वरी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एज फर्दर यू प्रोग्रेस इन इंग्लिश ये डिफरेंसेस समझ में आने लगेंगे। फिलहाल इसको नोट कर लो और दिमाग में रख लो। चलो अभी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एक्सप्रेशंस। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एक्सप्रेशंस? एक्सप्रेशंस मतलब कि आर्टिकल कई जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है, कई एक्सप्रेशंस के। जैसे अब देखो यहाँ पर अ किलो, देखो अ किलो, अ डजन, अ पाउंड, ठीक है, ये देखो ये एक्सप्रेशंस है तुम्हारे। An article can be used before these expressions like half a kilo. अब यहाँ पर बड़ी मजेदार बात है, बहुत ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ सुनो, ये होता है एक्सप्रेशंस के लिए, जैसे और भी हैं a couple of, a few, a little, और भी बहुत सारे हैं। You can use an article before these expressions. अब एक चीज सुनना, there are 3 ways to refer to something, जो किसे आधा किलो, आधा लीटर ऐसे है, आधा दर्जन, हाफ डजन। इसको आप कैसे लिख सकते हो? सी यू कैन कॉल इट हाफ अ किलो और डजन और लीटर, जो भी आप लगाओ जिस भी चीज को ले रहे हो, या फिर 1 and a half किलो, या फिर a kilo and a half। ये 3 है, इनमें से कोई भी बोल सकते हो, दो तीनों सही हो जाएंगे। सबका मतलब है आधा किलो मांग रहे हो कोई चीज, दैट्स इट, सब सही है। ये 3 नोट कर लो। अब इसके बाद एक चीज ध्यान से सुनना, गलती कहाँ होती है। ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये सबसे ज्यादा गलती कराता है। अब इस एक्सप्रेशन को तो सबने समझ लिया, तो कई जगहों पे खुद का इनोवेशन भी चला आता है। क्या हो जाता है इनका, कई जगहों पे लिख दिया था अ हाफ किलो। कई लोग अपना खुद का भी कुछ निकाल देते हैं, अ हाफ किलो या लीटर या डजन, आप कुछ भी बोलना चाहो बोल सकते हो, ये बोल दिया जाता है। ये अगर कभी बोलते हो, सोचते हो कि हम ऐसा बना ले बोल रहे, तो अभी छोड़ देना, ये बिल्कुल गलत है, ग्रामेटिकली 1% का सही नहीं है, ये नहीं बोला जाता है, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो करेक्ट मेथड क्या है फिर? नहीं, अब सुनना इस बात को, ये अ हाफ तो तुम्हारा सही है, लेकिन अगर तुम किसी क्वांटिटी के आगे लगा रहे, जैसे किलो, डजन, लीटर, तो नहीं लगेगा, गलत है, क्योंकि भाई हर चीज रूल पे चलती है। तो यहाँ पे भी एक रूल आएगा। क्या रूल आएगा उसको ध्यान से सुनो। अगर अ है
प्लस हाफ है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी मर्जी है कि नहीं भाई हम अ लगाएंगे ही लगाएंगे, तो चलो मैं रूल बता देती हूँ, लगा लेना अपनी मर्जी से, पर वहां जहाँ रूल लगे, ठीक है। अ है, हाफ है, इसके आगे ये कंडीशन है कि नाउन होना ही होना चाहिए। अ हाफ के आगे नाउन, किलो, डजन, पाउंड कोई नाउन नहीं होते, ये याद रखना हमेशा, ये क्वांटिटीज हैं, ये नाउन में कभी नहीं गिने जाएंगे। तो यहाँ पर नाउन होना चाहिए। नाउन मतलब क्या है अब यहाँ पर, अ हाफ बॉय, नहीं वो वाला नाउन नहीं। कौन सा नाउन, देखो अगर तुम बात कर रहे हो शेयर, शेयर होता है ना, शेयर की, पोर्शन की, कोई पोर्शन, तब अ हाफ चलेगा। कैसे, देखो अब नाउन की जगह पर, चलो ये वही रहने दो, ये तुम्हारा अ रहने दो, हाफ रहने दो। नाउन की जगह पर देखना मैं क्या लिख रही हूं। अगर मैंने कह दिया अ हाफ शेयर, अ हाफ शेयर, तो शेयर हमेशा याद रखो एक नाउन है, तो तुम अ हाफ शेयर अगर बोल भी गए तो गलत नहीं है। सिंप्लिसिटी के लिए 1.5 बोलो, लेकिन ये सही है, ये भी सही है, गलत ये भी नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल चलो ले लो, मैंने पोर्शन लिखा हुआ है ना वहां पे, पोर्शन, अ हाफ पोर्शन, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। A half portion, a half share. This is grammatically correct because the rule says it has to be, if you want to use a half, it has to be a half and it has to be followed by a noun. आगे लगने वाला, इनके इसके आगे आने वाला नाउन ही होना चाहिए। अगर क्वांटिटी बोल रहे हो 1.5 चलेगा, किलो एंड अ हाफ, 1.5 किलो चलेगा, किलो एंड अ हाफ चलेगा, हाफ अ किलो भी चलेगा, अ हाफ कभी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो लोग उलट पुलट कर लेते हैं ना, ये उनके लिए था। और कहां पर इस्तेमाल नहीं हो सकता है इंडेफिनिट आर्टिकल की जगह 1, जहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल पर की जगह पर हो रहा है। पर यानी प्रति, जैसे 2 रुपए तो नहीं होता, 50 रुपए प्रति लीटर है, 50 रुपए प्रति किलो, ऐसे बोला जाता है ना। मतलब क्या होता है, 1 किलो लेंगे तो 50 रुपए, 2 ले लेंगे तो 100 किलो हो जाए, 100 रुपए हो जाएगा, ये होता है मतलब। वहां पर 1 का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे जो लोग भी रेंट्स पे रहते होंगे उन्हें पता होगा कि भाई अब गया 5000 अ मंथ बोला गया आपको, इसका साफ मतलब क्या हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना ये 1 महीने का है, दूसरे महीने में आप 4000 5000 दे सकते हो। इसका मतलब ये है कि हर महीने का आपको 5000 रुपए भरना है, ये मतलब हुआ इसका, है ना। अब यहीं पे 1 लगा लो, तो यहाँ क्या मतलब हो जाएगा कि हाँ 1 महीने का है ये किराया, दूसरे महीने में आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर 1 का इस्तेमाल एक गलत दिशा में आपको डायरेक्ट कर सकता है। कैसे, 1 मंथ लिखा है तो हाँ मतलब पहले महीने 5000, दूसरे महीने कुछ भी दे दो। यहाँ पर 1 महीने को नहीं यूज हो रहा है, जहां पर भी 1 यानी 1 की जगह पर अ यूज होगा वहां तो 1 लिखो या अ लिखो कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल का हर जगह मतलब अलग अलग होता है, मैंने पहले ही बोला कॉन्टेक्स्ट से फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर वो 1 को नहीं दर्शा रहा है, वहां पर वो 1 को नहीं दर्शा रहा है, वहां पर ये पर की जगह यानी प्रति की जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आप कहीं देखते हो 50 रुपीज अ किलो, इट सिंपली मीन्स 2 किलो लोगे तो 100 रुपए हो जाएगा, वहां पर 1 नहीं लग सकता। एक और ये आर्टिकल का इस्तेमाल है। अब एक टिप मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ, वो ये है कि हमेशा याद रखना कि अगर तुमने यहाँ पर आर्टिकल लिखा, ये रूल है इसको याद कर लो, यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया बीच में, मान लो एडजेक्टिव आ रहा है, तो हमेशा एडजेक्टिव नाउन के आगे लगेगा। जैसे शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया ना। गुड इज व्हाट, गुड इज एन एडजेक्टिव, गुड इज एन एडजेक्टिव, है ना। तो यहाँ पर अगर नाउन है और तुम्हें आर्टिकल लगाना है और तुम्हें एडजेक्टिव भी दिया हुआ है, तो वो हमेशा इन दोनों के बीच में लगेगा, ठीक है। तो अगर एडजेक्टिव भी इन्वॉल्व है कहीं और वहां पर आपको आर्टिकल लगाना है, तब नाउन के आगे मत लगा देना, तब आपको एडजेक्टिव के आगे लगाना पड़ेगा। प्रेफरेंस में एडजेक्टिव पहले आ जाएगा। कैसे, अब देखो जैसे मैंने यही लिखा, ही इज अ गुड बॉय, तो ये ही इज अ गुड बॉय, बहुत गंदा लिख रही हूं मैं, आई होप समझ में आ रहा हूं। ही इज अ गुड बॉय, तो ये एडजेक्टिव है तुम्हारा
और ये तुम्हारा नाउन है और ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। कभी भी ये मत कर देना कि लिख दो ही इज गुड अ बॉय, ये गलत है। तो हमेशा याद रखना अगर एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो फिर वहां पर नाउन आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले लग जाएगा, नाउन पहले फिर नहीं लगेगा। फिर क्या होगा, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, ठीक है, आर्टिकल एडजेक्टिव और नाउन इस तरीके से लगेगा, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये रूल लगेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउन कॉम्प्लीमेंट बहुत ही इजी है। नाउन कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि तुम्हें कुछ पता चल रहा है किसी नाउन के बारे में। नाउन मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल का रूल वो आर्टिकल्स का रूल कहता है कि नाउन्स को ही डिनोट करता है आर्टिकल, इसलिए मैं बोलती हूँ ताकि तुम्हारे यहाँ कॉन्सेप्ट बैठा रहे दिमाग में। अब सुनना, नाउन कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लीमेंट जनरली डिस्क्राइब समथिंग अबाउट द नाउन। हमको पता चलता है कि नाउन क्या करता है, ठीक है, कुछ क्वालिटी नहीं कहूंगी, चलो छोड़ो क्वालिटी गलत जाएगा, उसके बारे में कुछ पता चलता है। कैसे, अब एग्जाम्पल, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सो इफ यू से हर्षिता इज अ यूट्यूबर, चलो मैं लिख दे रही हूँ, हर्षिता इज अ यूट्यूबर। सो हियर हर्षिता इज मी, मैं नाउन हो गई। यूट्यूबर इज वॉट यू गेटिंग टू नो अबाउट मी, कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ। एनीवन हु क्रिएट्स वीडियोस ऑन यूट्यूब इज अ यूट्यूबर, ठीक है, छोटा बड़ा वो बात नहीं है। यूट्यूबर इज समवन हु इज क्रिएटिंग वीडियोस, ये मेरे बारे में तुम्हें पता चला, तो ये तुम्हारा नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया। यूट्यूबर नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या करते हैं कुछ बुद्धिजीवी, अगर लिखा हुआ है कि हर्षिता इज अ गुड गर्ल, तो क्या करेंगे, क्या दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर तो हर्षिता के बारे में पता चला कि वो भाई वो यूट्यूबर है, और यहाँ पर भी कुछ पता चल रहा है कि हाँ अच्छी लड़की है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया। नहीं होगा। कैसे कह सकती हूँ मैं ये बात, तो चलो इसके लिए मैं टिप दे देती हूँ, ये याद रखना, दिमाग में टिप्स को बैठाए रहो, कभी गलती करोगे नहीं, ठीक है। तो क्या टिप मैं दे रही हूँ यहाँ पर, एक कॉम्प्लीमेंट के बिना सेंटेंस ही नहीं होता। अगर नाउन कॉम्प्लीमेंट है तो सेंटेंस नहीं होगा, अगर नाउन कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो सेंटेंस नहीं होगा। इससे मैं कहना क्या चाहती हूँ, अब इसको ध्यान से सुनो। पहले वाले में हर्षिता इज अ यूट्यूबर, चलो मैं इस हर्षिता को यूट्यूबर को हटा देती हूँ, मैंने ये यूट्यूबर इरेज कर दिया, ध्यान से देखो इसको, मैंने ये यूट्यूबर हटा दिया, तो क्या बचा, हर्षिता इज अ, ये कोई सेंटेंस है? बचपन से सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी है कि इट हैज टू मेक सेंस, इट मेक्स कंप्लीट सेंस। ये कोई सेंस बना रहा है? बस समझ जाओ, तुम्हारा यूट्यूबर नाउन कॉम्प्लीमेंट था, ये कोई सेंटेंस नहीं, उसके बिना सेंटेंस नहीं। अगर वो है सेंटेंस में, उसे हटा दोगे, छुपा दोगे तो सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखो, चलो मैं गुड हटा देती हूँ, तब भी तो सेंटेंस ही है, हर्षिता इज अ गर्ल, तब भी तो सेंटेंस ही है, तब भी सही सेंटेंस है। तो इट इज अ, तो इट वॉज नॉट अ नाउन कॉम्प्लीमेंट। गुड तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट नहीं था, ये याद रखना। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके भी, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। कैसे, देखो, शी इज एक्ट्रेस, ठीक है, शी इज एन एक्ट्रेस, ही इज एन एक्टर, ही इज एन एक्टर, ये सारे के सारे तुम्हारे नाउन कॉम्प्लीमेंट के एग्जाम्पल्स हैं, ये ध्यान रखना। दीज आर योर नाउन कॉम्प्लीमेंट्स। क्यों, ये तुम्हारा नाउन कॉम्प्लीमेंट है, नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, बस कुछ मत करो, छुपा लो इसको, हटा ही दो, लो हटा दिया मैंने, लो ये तो सेंटेंस ही नहीं रहा, बस बात खत्म हो गई, क्या कंफ्यूजन बचा। एक्ट्रेस नाउन कॉम्प्लीमेंट था, तो ये है नाउन कॉम्प्लीमेंट। एनीवेयर वेयर इट इज अ कॉम्प्लीमेंट इज इन्वॉल्व्ड, आर्टिकल इज यूज्ड, इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड। डेफिनेट अभी तक शुरू भी नहीं किया हमने अपनी सीरीज का, तो इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड, ठीक है। अब नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया, एक्सप्रेशंस हो गई, मैंने एक्सप्रेशंस दोनों बार में लिख दिए। अरे अच्छा सुनो, ये एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट एक्सप्रेशंस। एक्सक्लेमेशंस,
एक्सक्लेमेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? समथिंग जो एकदम इंस्टेंटली आ जाए, कोई फीलिंग, उसको एक्सक्लेमेशन, उसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन की कैटेगरी। जैसे मौसम देखकर तुमने कहा आज कितना अच्छा सुहाना मौसम है, तो ये एक्सक्लेमेशन में आता है। नाउ एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर, सॉरी, इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ? सी हियर। चलो ही नहीं भाई, शी कर लेते हैं, या चलो ये तो तुम्हारा एक्सक्लेमेशन में आएगा भी नहीं, चलो अच्छा, चलो ये एग्जांपल मैं बहुत अच्छा दे देती हूँ। मान लो कहीं गुजरे, कहीं से कोई मोहतरमा काफी खूबसूरत आपको दिख गया और आपके मन से निकल गया कि हाय कितनी सुंदर है, तो ये आपका एक्सक्लेमेशन में आ गया। कैसे? देखो, व्हाट अ प्रिटी वुमन, या गर्ल, चलो गर्ल कर लो भाई, वुमन मत करो। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, उसके आगे एक्सक्लेमेशन का मार्क, व्हाट अ प्रिटी गर्ल। ठीक है, ये एक सेंटेंस है where you're talking, you're referring to a girl who is pretty, तो ये उस कैटेगरी में, तो ये एक एग्जांपल है व्हाट डू आई मीन बाय एक्सक्लेमेशंस में यूज होता है। एकदम से एक फीलिंग आई ना, जैसे मैं ही हूँ और कोई बहुत ही हैंडसम से जनाब मेरे सामने से गुजर जाए, तो मुझे बड़ी एकदम से फीलिंग आई है ना कि अरे कितने हैंडसम है ये, तो वैसा ही है कुछ। अब इसका ध्यान रखना, मान लीजिए दो मोहतरमा गुजर गई हैं, दो मोहतरमाएं हैं, पता नहीं मोहतरमाएं बोलते हैं कि नहीं, पर दो मोहतरमाएं गुजर गई हैं, तो वहां पर रास्ते से गुजरी हैं, ठीक है, गुजर नहीं गई है, रास्ते से गुजरी है आपके सामने से, तो वहां पर आ जाएगा व्हाट अ प्रिटी गर्ल्स, मत कहना, इंप्रेशन मत खराब करना मेरा, ठीक है। व्हाट अ प्रिटी गर्ल्स नहीं कहोगे, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों? सिंगुलर है, काउंटेबल तो है, सिंगुलर है क्या? नहीं है, तो कैसे सही हो जाएगा ये, फिर बताओ। तब ये हटा देना, व्हाट प्रिटी गर्ल्स, हाउ प्रिटी आर दे, इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया एक्सक्लेमेशन से मेरा मतलब। व्हाट अ प्रिटी गर्ल, व्हाट अ प्रिटी बॉय, वी लॉस्ट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। द लास्ट वन इज सरनेम्स। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने सबको गलती करते सुना है, सबको, उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता। देखो एक चीज हमेशा इंग्लिश में याद रखनी है, अर्थ का अनर्थ तुम अगर करना चाहो ना, तो सिर्फ जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, इनमें गलती कर दो, सिर्फ इनमें गलती कर दो और वही अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इस पे देखो क्या अर्थ का अनर्थ होता है। ऑलवेज रिमेम्बर, एग्जाम्पल्स देखो, मिस्टर मिश्रा एंड मिस्टर मिश्रा। अच्छा, मैंने वैसे डेफिनेट आर्टिकल शुरू किया नहीं है, पर यहाँ पर चलो मैं वो भी कर देती हूँ, ठीक है। चलो, एक के आगे कोई आर्टिकल नहीं, एक के आगे अ लगाए, एक के आगे द लगाए, क्या फर्क है तीनों में? सुनना इस बात को, हम इन्हीं पे ज्यादा कंसर्न रहेंगे। ये तो मैंने बस एक एक्स्ट्रा बता दिया है समझने के लिए। अब इसके लिए समझना, सपोज मेरे घर में somebody comes to meet my father, okay? My father is unfortunately not at home then, at that moment. मैं जाती हूँ, I open the door, I ask him, he asks me कि is your father home? I say no, he is not unfortunately. So he says, okay, बेटा please inform him I came. और मैं पूछूं आपका नाम क्या है, उन्होंने अपना कुछ नाम बताया। एटिकेट्स में हमेशा ये आता है, ध्यान से सुनना, कि आप किसी के नाम के आगे मिस्टर या मिस या मिसेस लगाएं, डिपेंडिंग कि वो शादीशुदा है या नहीं, आप लगाएं, ये होता है। एंड इट इज नॉट हियर, बट इन द वेस्ट वी जनरली एड्रेस समवन बाय देयर सरनेम। जैसे यहाँ मिस्टर, एटिकेट्स या एक रिस्पेक्ट के लिए, और मिश्रा सरनेम। फर्स्ट नेम से इन द वेस्ट वी डू नॉट एड्रेस एनीवन, नो वन इज एड्रेस्ड बाय फर्स्ट नेम अनलेस यू पर्सनली नो देम। अगर आपके दोस्त रिश्तेदार हैं तो आप उनके फर्स्ट नेम, जैसे इफ इट इज जॉन, यू कैन कॉल द पर्सन जॉन, बट इफ ही इज जॉन मिलिगन, लाइक आई से, इफ आई से, तो अगर आप उनको नहीं जानते हैं तो आप उन्हें मिस्टर मिलिगन से करेंगे, उनके सरनेम से एड्रेस करेंगे। ये वेस्ट में एक तरीका है टू एड्रेस पीपल। In our country, you can address anyone by we generally address by first names. ठीक है, चलो वो बातें हो गई, अब यहाँ सुनना। So he told me his name रमेश मिश्रा या कुछ, मैंने out of respect एंड चलो मैं वेस्ट का रूल फॉलो करती हूँ, मैंने मैंने मिश्रा ही केवल सरनेम ले लिया मैंने, बिकॉज आई डोंट नो हिम पर्सनली, मैंने मिश्रा ले लिया। एंड माई फादर कम्स बैक और मैं कहती हूँ कि पापा मिस्टर मिश्रा केम
came to meet you। तो ये जो अ मिस्टर मिश्रा है, इसको जरा ध्यान से सुनना। ये जो अ मिस्टर मिश्रा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जानते हो मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई मिस्टर मिश्रा आए थे लेकिन मैं उनको नहीं जानती हूँ, मैं उनको नहीं जानती हूँ। ये मतलब होता है अ मिस्टर मिश्रा का। वो एक वेस्ट का रूल मैंने आपको बताया, और ये जनरली, और मैंने देखा है हर जगह इसमें गलती होती है। सिर्फ अर्थ का अनर्थ करने में देर नहीं लगेगी, सिर्फ एक आ लगा दो। अब मान लो ये आ हटा दूं मैं, जैसे मैंने नीचे हटा दिया, तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर मिश्रा आए थे और मैं भी उनको जानती हूँ। मैं अपने पापा से बोलूँ कि पापा मिस्टर मिश्रा केम टू मीट यू, ये साफ साफ ये बोल देगा, तुरंत सामने वाले को जो तुम्हें सुन रहा होगा वो समझ जाएगा कि अच्छा कोई आए थे जिन्हें मैं भी जानती, जिन्हें ये भी जानते हैं। तो अगर आप किसी को रेफर कर रहे हो किसी और को, और आपको अगर सिर्फ अर्थ का अनर्थ करना है, तो सिर्फ आप आर्टिकल या तो लगा दीजिए या तो हटा दीजिए। अगर आर्टिकल लगा हुआ है, अ मिस्टर मिश्रा अगर है, इसका मतलब है जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, ही डज नॉट नो अबाउट एनी वन नेम्ड सच। मिस्टर मिश्रा नहीं पता उसको। अगर नहीं लगा है, मतलब आपके फैमिली फ्रेंड है, जानने वाले हैं। अब आ जाते हैं जरा डेफिनेट पे, द मिश्राज। तो अगर आप द लगा देते हैं किसी सरनेम के आगे, तो इसका मतलब है कि वो काफी ख्याति प्राप्त है, काफी, जैसे द बच्चन्स। सो यू नो कौन आए दिमाग में? मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड हिज फैमिली, वही आया ना दिमाग में। क्यों? क्योंकि वो ख्याति प्राप्त है, दे आर फेमस। सो दिस इज व्हाट द मीन्स। द लग गया, वी टॉकिंग ऑफ समवन स्पेसिफिकली जो हु इज फेमस, सबसे पहले वही दिमाग में आएंगे। अ लग गया, नहीं जानते हो, और अगर अ नहीं लगा यानी इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा, मतलब जानते हो। ठीक है, ये द वाली कैटेगरी भूल जाओ, ये द वाली कैटेगरी इन्वॉल्व नहीं है इसमें, लेकिन मैंने सिर्फ डिफरेंस के लिए बता दिया। बट हमेशा याद रखना, इनडेफिनेट आर्टिकल अगर हटा दोगे ऐसे इस सरनेम वाले मामले में, तो मतलब जानते हो उसको, समझ लिया जाएगा तुरंत। तो कभी गलती मत करना, गलत जगह लगाना भी मत और गलत जगह से हटाना भी मत। ठीक है? So yes, thank you so much. This was all about this video. This is how you use indefinite articles for your daily conversations and in your daily conversations. Okay, so thank you so much for putting up with me. I hope आपको समझ में आया if you are a beginner. अगर you were not a beginner and still saw my video till the last, so thank you so much. I love you. And next time we'll come with last video of this indefinite article series, a sub series to articles actually. उसमें हम omissions की बात करेंगे। Till then, bye bye, take care, love you.